morning, students. Today we will discuss about the next topic of magnetic effect of electric current, in which we have discussed that means when current is passing through the circuit, there will be formation of field, and that field is called your magnetic field, right? कि जब भी हम कभी भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट के अंदर से पास करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या फील्ड हो जाता है, एक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. कैसे पता चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड है? बाय यूजिंग द कंपास एंड द नीडल इन दैट कंपास विल बी डिफ्लेक्टेड इन द towards left or right depending upon the position of the current passing through the circuit, and which can be easily explained by using the right hand thumb rule से हमने उसको बताया था कि जिससे हम बता सकते हैं कि आपका जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी और आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वेदर इट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि इफ द करंट इज पासिंग थ्रू एंटी क्लॉकवाइज देन द इट विल बी योर नॉर्थ डायरेक्शन, और यदि क्लॉकवाइज होगा तो इट विल बी योर साउथ डायरेक्शन और इट विल बी डेजिग्नेटेड एज द साउथ पोल. अब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो what will be the force exerted on a current carrying conductor? ये मान लो मेरे पास कोई भी आपकी ऐसे रोड है, एल्यूमिनियम की रोड है और इसके अंदर इसको मैं दोनों चीज के अंदर रखूं, किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी और करंट के अंदर भी रखूं, तो what will be the force exerted on it? Whether it will be remains at its position or it will be deflected from its original position. So that can be explained by using an activity or doing an activity. In that we will discuss that activity. कि force कैसे करेंगे इसको? पहले इसका heading force on a current carrying conductor placed in electric and magnetic field. Electric and magnetic field. करंट कैरी कंडक्टर का मतलब अ मेटल रोड, ये मेटल की रोड है और हमने इसको पास करना है, किसके अंदर रखना है? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना है. तो हाउ विल यू डू दैट? यू हैव टू टेक अ स्टैंड. इट इज योर स्टैंड. तो यहाँ से रख कर देता थोड़ा सा ताकि थोड़ा और बड़ा मिल जाए, so that it is easily visible for you. In your stand, right? In that stand, we are having a wire or a iron rod or aluminium rod is placed, and that will be connected like this. ताकि ये गिरे ना. ये मालूम पॉइंट मैंने B बनाया और आपका दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? A पॉइंट बनेगा, and it will be placed or here you will place a horseshoe magnet, and which will be your, this will be your south pole and this will be your north pole. एक साउथ पोल बनाया हमने, एक नॉर्थ पोल बनाया. इस पॉइंट को मैं क्या बनाऊंगी? A, and this will be connected with your circuit. यहाँ से आपका आएगा ये which will be like this. इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो. इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. This is point B and this will be passes. और दूसरा आपका कहाँ से पास होगा? इस A पॉइंट से पास होगा, and they will be connected in a series with the bulb. bulb key से और आपके किससे कनेक्ट होंगे? बैटरी से या सेल से कनेक्ट होंगे, and it will be just like this, positive, negative. The current is flowing through the circuit from this. मतलब ये कहाँ से फ्लो कर रहा है? B to A. अब देखो current is passing. करंट कहां से पास हो रहा है? B to A, right? So you have to check what will be the deflection in the current carrying conductor. It will be towards or away from this side. ये अंदर के साइड जाएगी या बाहर के साइड जाएगी, ये देखना. ये लेफ्ट के साइड जा रही है या आपकी किसकी साइड जा रही है? राइट के साइड जा रहा है. When the current is passing through the circuit and that is from B to A, यानी आपका जो करंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? B to A आपका करंट जा रहा है.
जब B से A की तरफ करंट जाएगा and the powerful horseshoe magnet is placed like this, this is your magnet and the current is passing through that, you will see that the magnetic rod, कौन सी rod, current carrying conductor, that will be deflected towards the left. तो ये किसके साइड जाएगी, deflected towards the like this. ये आपकी क्या है, एक टाइप से horseshoe magnet है और इसके अंदर से जो करंट है वो ऐसे आता है, मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और करंट जब ऐसे पास होगा इस रोड के अंदर से, दैट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जाएगी जब करंट आपका कहां से पास हो रहा है, बी से ए की तरफ, तो रोड विल बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, अब ये किसकी तरफ होगी, रोड डिस्प्लेस होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट। नाउ वी विल चेंज द करंट, अब करंट को मैंने चेंज करना है एंड दैट विल बी मूव फ्रॉम बी ए टू बी। अब जो करंट है वो कहां से जा रहा है, ए से बी की तरफ, करंट कैसे जा रहा है, ए से बी की तरफ, यानी ये आपका मैग्नेट है, अब करंट ऐसे जा रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो जब आपका रिवर्स हो गया, अब सुनो, व्हेन द करंट इज रिवर्स द रोड डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो बी रिवर्स। अब रोड डिस्प्लेस होगी किसकी तरफ, डायरेक्ट की तरफ, राइट, अंडरस्टैंड। ये आपका एक तरह से होर्सशू कंपास है, ये आपके साउथ डायरेक्ट पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। पहले करंट आपका ऐसे आता है, जब करंट ऐसे आता है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट विल बी डिस्प्लेसिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब मैंने करंट की चेंज कर दी, अब मैंने करंट को ऐसे कर दिया, लिप से पता चलेगा कि इन विच डायरेक्शन द करंट इज फ्लोइंग। अब करंट ऐसे आ जा रहा है, आपने होर्सशू मैग्नेट को एज इट इज रखा है, ऊपर साउथ है नीचे नॉर्थ है, इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट। तब जब हमने करंट को डिस्प्लेस किया तो जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगी, दैट विल बी चेंज और दैट विल बी रिवर्स। ओके, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं फोर्स डिपेंड्स अपॉन द force on the current carrying conductor depends on your I। अब हमने ये तो कर दिया, अब इस होर्सशू मैग्नेट को आपने देखा कि आपने करंट ऐसे किया, साउथ पोल में ऊपर है और नॉर्थ पोल ऐसे, तो you will check कि the direction or the force on the current carrying conductor that will show the display when you reverse the magnet। मैग्नेट को आपने रिवर्स कर दिया, जो साउथ पोल था उसको नॉर्थ बना दिया, नॉर्थ को साउथ कर दिया, you will see that again there will be a force on the current carrying conductor and it will be displaced opposite to that of the previous one। जो पहले आपका लेफ्ट की हुआ था, अब दोबारा किसकी तरफ हो जाएगा, राइट की तरफ हो जाएगा। यानी मैं कह सकती हूँ कि इट विल डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड, किसके ऊपर डिपेंड करिए, आपकी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड है। यानी जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगी वो किस किस चीज पर डिपेंड की आपकी, वन विल बी ऑन योर करंट and second will be on your magnetic field। Third one, अब जो ये current carrying conductor है, मान लो मैंने इसको 10 सेंटीमीटर का लिया and see the force deflected or see the force present on that when kept in the magnetic and the electric field। कि 10 सेंटीमीटर के लिए तब देखो इसके ऊपर फोर्स कितना है, कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है अपनी पोजीशन में। उसके अलावा मान लो मैंने 20 सेंटीमीटर की ली या मैंने 50 सेंटीमीटर की ली, यानी मैंने लेंथ को हर बार क्या किया है, इंक्रीज किया है। So you will see that the force on the current carrying conductor will also increase as the length of the conductor is increased। कि जैसे जैसे लेंथ उसकी बढ़ेगी, आपकी जो फोर्स होगी उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे वो भी बढ़ेगी। So we can say that F is also depends upon the length of the conductor। And you will see that when we place the magnetic field and the electric field at the different angles, कि मैं इसको different angles पे रखूं, कौन सी पोजीशन पे, either they are perpendicular to each other, either they are parallel to each other or they are going in the same direction। तीन पोजीशन हो सकते हैं, या तो वो पैरेलल जाए, उसके दोनों आपके पैरेलल हो एक दूसरे के, या एक डायरेक्शन में, या क्या हो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो। At that time we check the force on the current carrying conductor and you will see that the current force on the current carrying conductor will be maximum when magnetic field and electric field are perpendicular to each other। यानी करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तब आपकी जो फोर्स है करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि और बीच में आपने इसके एंगल चेंज करते जाओगे तो द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर विल आल्सो चेंज।
and it will becomes also zero when the current and the magnetic field are in the same direction. यदि करंट और मैग्नेटिक फील्ड को सेम डायरेक्शन में हो जाए तो फोर्स लगेगी उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, वो आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट। अब मैंने एक इक्वेशन लिया, फर्स्ट सेकंड क्या ये और थर्ड इक्वेशन लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, right? So F is equal to directly proportional to I B L या B I L, कुछ भी लिख लीजिए आप। अभी इसको हम निकालेंगे तो that will be equal to K B I L या I B L, कुछ भी लिख लीजिए। That is your proportionality constant. इसको क्या बोलेंगे हम, proportionality constant. If K is equal to 0, यदि हम इसकी वैल्यू को K की वैल्यू को 0 रखते हैं तो F is equal to B I L. डाउट? देखो K को मैंने क्या बोला, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, if K is equal to 1 then F is equal to B I L. B I L के बराबर हो जाएगी। अब देखो फोर्स हम किस में निकालते हैं, न्यूटन में। The units of the magnetic field is your Tesla. Tesla. Current will be in your ampere and length will be in your meter. Understand? तो F किसके बराबर होगा, BIL. तो F is generally maximum का होगा और minimum का होगा when the angle present between the magnetic field and the current. Current और magnetic field के अंदर जो angle होगा that will be represented by the sin theta, and if theta is equal to 90 degree, थीटा किसके बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए, देन sin थीटा इज इक्वल टू 1. sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1. आपने वो पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ते हैं 0.2 करके करते हैं, 0 30 45 60 75 90 करते हैं, तो उसमें sin थीटा 90 किस डिग्री के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मींस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो देन F इज इक्वल टू BIL, यानी ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अंडरस्टैंड? जब थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, आपका 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, तो जो आपका फोर्स होगा ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर दैट विल बी मैक्सिमम। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और 0 डिग्री, देन sin थीटा विल बी इक्वल टू 0. Then force on the current carrying conductor will be 0. Means there will be no displacement of the current carrying conductor if current and the magnetic field are placed parallel to each other or they are in the same direction. Then we will say that कि F is equal to 0 के बराबर हो जाएगा, लेकिन maximum कब होगा, when they are perpendicular to each other. यानी magnetic field और आपका जो current है that should be perpendicular to each other. And that can be easily explained by using Fleming left hand rule. तो इसको explain किससे किया गया, Fleming left hand rule से explain किया। तो Fleming left hand rule क्या कहता है कि when electric field and magnetic field are perpendicular to each other, then means ये आपका मानो मैं ये लिखा हुआ ऐसे सिंपल ड्रॉ करें इसको, this one will be an electric field and another will be a magnetic field. This is your field, कौन सा, magnetic field, and this is your current. अगर थोड़ी सी ज्यादा होगी इसको थोड़ा कम कर देते हैं, so that they will be perpendicular to each other. This will be your current. Then the force on the current carrying conductor that will be maximum. Means this current and a magnetic field and this current must be perpendicular to each other. ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है. They should be perpendicular to each other. You will see that कि ये जो आपका magnetic field है और ये आपका जो करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट,
these must be perpendicular to each other, mean there will be an angle of 90 degree. Then this force on the current carrying conductor will also be perpendicular to the both. दोनों के perpendicular होगी, and you will check the direction of the force और magnitude of the force भी आप निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हैं कि current is आपका जो current इस direction में है, magnetic field इस direction में, then the force will be like this, right? तो ये upward और इसको ये कर देंगे, ये करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. और जो मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया है उसको किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि वायर होने की वजह से क्या रहता है उसपे एक ऐसे किक लगता है, इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट. अभी जैसे मैंने आपको बताया F is equal to B I N means इसकी यूनिट क्या बताया मैंने, टेस्ला. So when it will be equal to 1 Tesla, if you have to define 1 Tesla, so then B is equal to F upon में I or N, right? Means the Newton of the force is equal to 1 Newton, current will be 1 ampere, and the length of the conductor is your 1 meter. कि जब आपका एक जो ये रोड ली है हमने कौन सी एल्युमिनियम की करंट कैरिंग कंडक्टर है, इफ द लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, इसकी लेंथ 1 मीटर हो और इसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है वो 1 एम्पियर का है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन, देन इट विल बी इक्वल टू 1 टेस्ला. अंडरस्टैंड? तो दैट विल बी इक्वल टू 1 टेस्ला. अब ये देखो इस इक्वेशन का जो इक्वेशन हमने फोर्थ इक्वेशन बोली थी कि F इज इक्वल टू बी आई एन. आई किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन में टी, कूलम्स ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, कि एक पर्टिकुलर उसमें से कितने कूलम्स का चार्ज आता है पर्टिकुलर टाइम में, दैट विल बी इक्वल टू आर. अब F इज इक्वल टू बी इनटू क्यू इनटू एल अपॉन में टी. एल अपॉन में टी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी, राइट? So we will say that F is equal to B into Q into velocity. So force और magnitude किस पे निकाल सकते हैं, how much amount of the coulomb of charge is passing through that, and what will be the velocity of that, and that will be equal to your force or magnitude of the force. Magnitude of force मतलब उसके ऊपर कितनी force लगी है, या हम इस equation से उसको क्या कर सकते हैं, calculate. That will be your Fleming left hand rule. Fleming left hand rule में क्या है, magnetic field and the current. This magnetic field and this current will be always perpendicular to each other, and when they are perpendicular to each other, the force exerting on the current carrying conductor will be maximum. And you will see that here जो force current carrying conductor that will also perpendicular to the both. दोनों के perpendicular है, तो हमने इसको क्या कहा force, और यहाँ पे हम इसको साथ में क्या लिख सकते हैं, motion. मोशन का मतलब है कि आपकी जो रोड है वो कितनी डिस्प्लेस हुई, दैट विल बी मैक्सिमम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड दैट इज योर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट देयर इज एन एग्जांपल इज गिवन. एक एग्जांपल दिया है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया है, इट्स योर मैग्नेटिक and electrons are moving like this. So what will be the direction of the force acting on the electron? So how will you calculate? कि आपका करंट मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट? तो जब इलेक्ट्रॉन्स आपके नीचे की साइड आ रहे हैं तो करंट आपका किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन. अब इसको मैंने क्या बताया था, करंट बनाया था, इसको उल्टा कर, राइट? अब ये करंट तो आपको ऊपर की साइड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो फोर्स है, ये थंब वाली फोर्स, ये कहां जाएगी, पेज के अंदर. किसके अंदर जाएगी, इनटू द पेज. यदि ऐसे होता, करंट बाहर की साइड आता तो ये आउटसाइड द पेज होती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन पर चेंज करा कि करंट यदि आपका इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड मूव कर रहा है तो करंट आपका कहां की साइड मूव करेगा, ऊपर की साइड मूव करेगा. और जो ये मेरा थंब है ये किसकी साइड डिनोट कर रहा है, इनर साइड. ये देखो थंब कहां जा रहा है, अंदर की साइड. तो जो आपका फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन पे वो किसके अंदर होगी, इनटू द पेज.
Understand? Is there any doubt related to this? I will ask the questions. Just completing that. कि आपका इलेक्ट्रॉन का बता दें कि इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. जब इलेक्ट्रॉन आपके साइड डायरेक्शन में करे तो करंट आपको ऊपर होगा, और जब करंट ऊपर होगा तो इट विल मूव इनसाइड द पेज. पेज के अंदर जाएगी, किसका फोर्स लगेगी, जो इलेक्ट्रॉन पे लगेगी. एंड ये आपका बी क्या हो गया, आपका मैग्नेटिक फील्ड. अब व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नेटिज्म इन द मेडिसिन. अब जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड इन मेडिसिन, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. व्हाट रोल इट प्लेज? एज ऑल ऑफ यू नो दैट देयर इज अ नर्व इम्पल्स. सबका नर्व इम्पल्स होता है, सबको पता है कि कोई भी चीज देख ले, इट लुक ग्रेट, देन वी विल ट्राई टू सी इट अगेन एंड अगेन. लेकिन जब कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज को देखते हैं, डरते हैं, तो एकदम अपने अपने हाथ को पीछे करते हैं. यानी कभी आप फोर्थ पेन को छू रहे हैं, या कभी आपके सामने स्नेक वगैरह कुछ भी हो जाए ऐसे जिससे यू आर फ्राइटेंड, यू विल जस्ट कीप योरसेल्फ आउट फ्रॉम दैट एरिया. तो इसका मतलब क्या, वहां पे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, और जहां भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होगा, जहां भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होगा, वहां क्या हो गया आपकी मैग्नेटिक, वहां पे क्या हो गया आपकी मैग्नेटिज्म. यानी आपकी बॉडी के अंदर से भी इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो वहां पे आपके मैग्नेटिज्म होता है. But it is not so strong that we can check it how much it will be there. But there are the two organs in our body. One will be known as your heart, and second one will be known as the brain. जो heart और brain है, they are having the magnetic field inside the body. और ये इसी की वजह से हम different type की images calculate कर सकते हैं. That is known as your magnetic resonance, MRI. MRI के बारे में सुना है कभी? किसी को सर में दर्द होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं MRI करवा लो. यदि हार्ट का तो हार्ट के में कुछ प्रॉब्लम है तो कहेंगे एको करवा लो, या फिर आप क्या करवा लो, ECG करवा लो, या फिर आप क्या करवा लो, MRI करवा लो. तो what is MRI? Magnetic resonance imaging. राइट? तो ये दो पोर्शन है, दो ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर which are able to give your images due to the magnetic field. इसी वजह से किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है या ब्रेन की प्रॉब्लम है तो there will be MRI. Due to that MRI it is very easy to diagnose what type of the problem in that. Due to this magnetism or magnetic field plays an important role in our medicine. Okay, that is about your magnetic field force. और आपका किसकी वजह से उसका मैग्नेटिज्म का क्या है. अब जो नेक्स्ट रहेगा दैट विल बी योर इलेक्ट्रिक मोटर. Just a second. If you are having any doubt related to that, because if I will start the motor, it will not be completed.